Hello and welcome to Study with Sudhir. My name is T.S. Sudhir. It's been about 20 days since we started the Century batch, which is the one-shot revision videos for History and Civics paper ahead of the 2021 Class 10 ICSE board examinations. The response has been overwhelming, and let me just tell you in a nutshell what we have done so far. We have almost covered the entire History and Civics syllabus. I think just one chapter is left as far as civics is concerned. History is done, civics, the rest of it is also done. What it also contains, apart from what about close to 22 videos that we will have notes of each and every chapter, revision notes, crisp notes, which if you read, you'll be able to tackle any question which is part of your reduced syllabus in both civics and history, section A and section B. We have highlighted the keywords, and I think that's one of the USPs of our notes and our videos. And also we'll be doing a whole lot of mock tests once all the videos are done. My deadline was 25th, but I think by the 15th or 16th we should be able to finish off uploading all the videos well ahead of schedule. The notes are really of high quality. Then we will have live classes starting in April, after the 7th of April, when we will do live classes where we will address doubts chapter by chapter. And then there will be a re-revision of each chapter or each section again and again for all those students, because as I have been saying in all my videos, I do not want anyone to score even a 78 or a 79 out of 80. I want each and every student who has enrolled himself or herself in the Century batch to score an 80 on 80. Okay, that's the objective. We are not happy with anything less than 80. Let me make that very clear. Okay, now I'm making this video on YouTube so that it reaches a larger audience. जो सेंचुरी बैच में आ गए फाइन, बट जो नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो है, ताकि आप सुन लें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Okay, now one of the often asked questions, and this is more on YouTube, is that can we do select chapters? हाँ, आप कर सकते हैं select chapters. If your intention is to get 60 out of 80, you can definitely do select chapters. I'm being sarcastic and I hope you get the sarcasm. But if your aim is to get an 80 on 80, no, you cannot do select chapters. Unlike in geography, where the pattern of the question paper, and please do not listen to some YouTubers who say pattern change हो जाएगा 2021. ये फेकू YouTubers हैं, फर्जी YouTubers हैं, फर्जी educators हैं, जिनको कुछ घंटा नहीं मालूम है एजुकेशन और किसी सब्जेक्ट के बारे में, जो बोलते रहते हैं पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. जो पिछले साल का पैटर्न था वही पैटर्न है एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस. ओके, सो इन हिस्ट्री सिविक्स you can leave out some chapters at your own risk, because यहां पर सेक्शन A और सेक्शन B का फॉर्मेट इस तरह से है कि आप कोई भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं. उसमें से सेक्शन B में नहीं आएगा तो सेक्शन A में आएगा. फॉर इंस्टेंस ए चैप्टर लाइक यूनाइटेड नेशंस, राइट, बहुत ही कम सिलेबस रह गया है इस बार 2021 में, तो मुझे नहीं लगता है कि यूनाइटेड नेशंस का आपको सेक्शन बी में कोई सवाल आएगा. उसका सवाल सेक्शन ए में आएगा. तो अगर आप उस चैप्टर को छोड़ देंगे तो आप यहां पर एटलीस्ट 1 मार्क से हाथ धो बैठेंगे. ओके, the choice is entirely yours if you want to do anything. I personally feel so much of the syllabus has been reduced, and while I have been recording the videos for the Century batch, I realize इतना सारा सिलेबस कम कर दिया है. अब इतना तो पढ़ सकते हैं. और I can promise you one thing, and this I think people in Century batch will also tell you who are as enrolled. You will need only 1 day of full study of all the videos and looking at the notes, and one reading of your textbook, whichever textbook you study. Textbook को ignore मत कीजिए, textbook भी पढ़िए, उसके बाद notes पढ़िए. You will be able to do it fine. Then you devote another half a day for a re-revision after say 3 days, 4 days, 5 days to test whether आपको कितना रिटेंशन हुआ है. देन यू डू इट अगेन आफ्टर 3 days. आप पाएंगे कि आपका जल्दी से जल्दी आप हिस्ट्री सिविक्स का रिवीजन कर पाते हैं. इसमें आपको 4 दिन 5 दिन लगाने की जरूरत नहीं है. दैट इज प्रिसाइसली द आइडिया. वी हैव मैनेज्ड टू कंप्रेस इट, टेल यू एज अ स्टोरी सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट, रिकलेक्ट इट एंड बी एबल टू राइट द आंसर्स ऑल्सो. और वो सब हम टेस्ट करेंगे व्हेन वी आर डूइंग द री-रिविजन इन द मंथ ऑफ अप्रैल. एनीवे, दिस इज नॉट अबाउट सेंचुरी बैच अलोन. दूसरी बात पूछी जाती है मुझसे, should we remember dates? There are teachers who tell
स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम हैव टोल्ड मी कि डेट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है. फाइन, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरी डेट, बट देयर आर सर्टन डेट्स दैट यू शुड रिमेंबर, एंड आई थिंक इन योर ओन इंटरेस्ट यू शुड रिमेंबर. फॉर इंस्टेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ, चौरी चौरा का इंसिडेंट कब हुआ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट एज पार्ट ऑफ द सेंचुरी बैच आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ डेट्स which you should remember. Okay, it won't be a very big list, but उस लिस्ट को आप याद रखिए, उन डेट्स को आप मेमोराइज कर लीजिए, एंड आई थिंक यू शुड बी फाइन. आई पर्सनली फील जब कोई स्टूडेंट डेट को मेंशन करता है, इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड, इट गिव्स द एग्जामिनर ए गुड इंप्रेशन कि ओके, इस विद्यार्थी ने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा है, याद करने की कोशिश की है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट्स एज फार एज द डेट्स आर कंसर्न. हर चीज को आप पॉइंट फॉर्म में याद रखने की कोशिश कीजिए. दैट्स व्हाट आई टेल एवरी स्टूडेंट. पहले भी मैं बोलता था, 2020 बैच में भी, 2021 बैच में भी, सेंचुरी बैच में भी मैं बोल रहा हूं, हर चीज को आप पॉइंट फॉर्म में याद रखने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग इन पॉइंट फॉर्म, एंड अनलाइक इन इंग्लिश लिटरेचर, हियर यू कैन राइट थिंग्स इन पॉइंट फॉर्म सो दैट इट्स इजियर विद द कीवर्ड्स. कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लेंथ ऑफ आंसर्स क्या होने चाहिए. बंधु, अगर आप 2 पेज का आंसर भी लिखेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई कीवर्ड नहीं हुआ, तो आपको अंडा मिलेगा, अंडे का ऑमलेट भी मिलेगा. ओके, तो लेंथ ऑफ आंसर्स इज नॉट द की, द क्वालिटी ऑफ द आंसर इज द की. और क्वालिटी कैसे मिलेगी? क्वालिटी आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूं, क्वालिटी आएगी कीवर्ड से. दिस इज द के ऑफ क्वालिटी. तो ये कीवर्ड पर ध्यान दो, और उसी को हम एम्फसाइज करते हैं हमारे बैच में, ताकि हर कीवर्ड, हर आंसर का इज अंडरलाइंड इन एज पार्ट ऑफ द सेंचुरी बैच. बट इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंचुरी बैच, आप जब भी कुछ पढ़ें तो आप उसमें देख लीजिए, इसमें सबसे प्रमुख, मुख्य, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं, वही आपके बंधु कीवर्ड्स रहेंगे. ओके, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ज्वाइन करना है तभी ये मिलेंगे, नहीं. मैं वहां पे कोई न्यूक्लियर कोर्स नहीं बता रहा हूं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इजियर फॉर हूवर इज देयर, सो दैट वो 3 कीवर्ड पढ़ लेंगे, दे विल रिमेंबर, ओके, इन 3 वर्ड्स को मेरे को जरूर यूज करना है अपने उत्तर में. लेंथ डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स. ओके, ये याद रखना. और ऑल्सो रिमेंबर, डोंट राइट बल्की पैराग्राफ्स. ये मैं हर सब स्टूडेंट को बोलता हूं, इंग्लिश में भी, हिस्ट्री सिविक्स में भी, बल्कि पैराग्राफ मत लिखो, पॉइंट फॉर्म में लिखो. आसानी होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी, एंड स्पेशली इफ यू हैव अ स्लाइटली बिगर हैंडराइटिंग. छोटा छोटा, आई मीन, पॉइंट फॉर्म में लिखो. इट्स इजियर फॉर द एग्जामिनर टू रीड. पिक्चर क्वेश्चन, अपने टेक्स्ट बुक में जितने भी पिक्चर्स हैं, प्लीज लुक एट दोस पिक्चर्स वेरी केयरफुली, बिकॉज do not get confused between Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai. Do not get confused between Jyotiba Phule and Surendranath Banerjee or Dadabhai Naoroji. Don't get confused, because picture question from any chapter will definitely come. From world history, from Indian history, definitely एक पिक्चर क्वेश्चन तो जरूर आएगा. तो प्लीज फॉर हेवन सेक इसको इग्नोर मत कीजिएगा. 2019 में मुझे याद है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के ऊपर का जो मेमोरियल है, उसका फोटोग्राफ आया था, जो कि आपके हर किताब में वो मेमोरियल की तस्वीर होगी. ओके, सो प्लीज रिमेंबर द पिक्चर क्वेश्चन के लिए फोटोग्राफ, बिकॉज उसमें आपको डिटेल्स नहीं दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ये 10 मार्क आपके पॉकेट में होने चाहिए. प्लीज डोंट लूज मार्क्स लाइक दैट. ओके, 10 मार्क नहीं, एटलीस्ट 4 मार्क का क्वेश्चन तो होगा ही. ओके, देन लेंथ की तो मैंने बात कर दी, कीवर्ड्स की बात कर दी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू यूज सब हेडिंग्स. सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज सब हेडिंग्स इनवेरिएबली विल आल्सो बी ए कीवर्ड. तो अगर आप सब हेडिंग का इस्तेमाल करके आगे डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज आल्सो नॉट अ बैड आइडिया. सब हेडिंग्स को अंडरलाइन कर दीजिए, एंड यू कैन काइंड ऑफ गो ऑन टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड. फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. तो पूरा आप जब जर्मनी वर्सेस पोलैंड वगैरह की बात करेंगे, जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड करके उसको सब हेडिंग देके अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि द एग्जामिनर नोज, ओके, द स्टूडेंट हैज identified the immediate cause correctly and then gone on to describe what really happened in the port of Danzig. किस तारीख को हुआ, that's important, September 1, 1939. किस वजह से हुआ, what was the reason, and you can link it to the Treaty of Versailles which was signed in 1919. उससे आप लिंक करके, so if you are able to link all these things, I mean, कोई एग्जामिनर आपका एक आधा मार्क भी कट नहीं करेगा. सो प्लीज एंश्योर जो आपका जो क्वालिटी ऑफ आंसर हो, उसमें सभी के सभी पूरा बारूद भरा हुआ हो. आप समझे, फिल इट विथ सो मच ऑफ गन पाउडर कि एग्जामिनर बोले, वाह भाई वाह, ओके, वाह मोदी जी वाह, क्या विद्यार्थी है, क्या स्टूडेंट है, क्या उत्तर है. ओके, तो
दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू बिकॉज यू सी कभी कभी मैथ काइंड ऑफ सब्जेक्ट में जहां पे 100 में से 100 मिल सकते हैं आपको, केयरलेस मिस्टेक हो जाते हैं। 2+2 को आप 2+3 समझ के you kind of make a mistake, right? And you unnecessarily, the rest of the calculation all goes wrong and you lose 3 marks on this thing. केयरलेस मिस्टेक्स हो सकते हैं। इसमें केयरलेस मिस्टेक्स का स्कोप नहीं है। इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे यू विल बी एबल टू रिकॉल इट। आपका टेस्ट क्या है? कितना समझा, हाउ मच डू यू अंडरस्टूड, हाउ मच यू अंडरस्टूड, हाउ मच यू आर एबल टू रिकॉल, हाउ मच यू आर एबल टू राइट इन द एग्जाम पेपर। 1 2 3 ये 3 स्टेप आप ठीक से करेंगे, आपके 80 में से 80 गारंटीड है। मैं लिख के देता हूं, ओके मैं लिख के देता हूं, आपके इसमें से 80 में से 80 आ सकते हैं। इफ यू जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दैट आई हैव टोल्ड यू, दिस इज फॉर एवरीवन, whether you are part of Century Batch or not part of Century Batch. Century Batch में this is what we are doing. 22 videos, I think, and these are notes written by me. I think they are quality notes, which is why people are trying to steal them and sell them in the gray market. Mock tests, live classes, which we'll do in April, because by that time everyone would have hopefully finished with the revision so that they are better prepared for quick tests, live tests, etc. And then we will do each and every chapter का री-रिविजन ताकि सभी के सभी पूरी तरह से तैयार हों टू स्कोर अ सेंचुरी। ओके, तो ये आपको बताना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। ये मैं समझे कि अभी 1.5 महीना है, बहुत टाइम है, मस्ती करेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे। लास्ट में जितनी बारी आप रिवाइज करेंगे उतनी तैयारी आपकी बेहतर होगी। यू कैन डू दैट राइट नाउ एंड यूज द टाइम लेटर फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अगर हो आपका बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, उन सब के लिए यू कैन डिवोट मोर टाइम लेटर ऑन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।